दुआ पढ़ा दीजिए प्लीज। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा वश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And we missed you, Anjum, yesterday. I too missed all of you, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं जाकर मम्मी डैडी से मिल के आई एक दिन, तो अच्छा लगा, उनको भी खुशी हुई, मुझे भी अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों हमने पढ़े ना तो हमको वालिदैन को भी मिलना चाहिए। 1-1.5 साल हो गया था, आप लोग भी लॉकडाउन में बैठे हो सकता है आपको भी नहीं मिलने मिला हो अपने पेरेंट्स से। अल्लाह करे कि सबके वालिदैन को तंदुरुस्ती दे और अपने हिफाजत में रखे अल्लाह इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह, अभी 33 सिस्टर्स प्रेजेंट है, अनम भी प्रेजेंट है। अनम, आई हैव होस्टेड यू। सूरह बकरा पढ़ेंगे, फर्स्ट पारा, आयत नंबर 97 से 11 रुकू कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आयत 97 से तिलावत सुनेंगे, पहले सब मिलकर पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم
لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونس اگین مائی ڈیئر سسٹرز. منڈے مارننگ ہے. امید ہے آپ سب ناشتہ کر کے آئے ہو اور سکون سے اپنا قرآن لے کے بیٹھے ہو. الحمدللہ یہ 2 گھنٹے ہمارے سکون کے ہوتے ہیں, ورنہ پورا دن ہماری بھاگ دوڑ چلتی رہتی ہے. 2 گھنٹہ ہم اللہ کی باتیں سنتے ہیں, اللہ کا کلام سنتے ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں ہم ہوتے ہیں, اللہ کی سپرویژن میں 2 گھنٹہ ہم صراط مستقیم پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر اس 2 گھنٹے کو کنورٹ کر دے ہمارے لیے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کر سکے, تاکہ پھر باقی کے 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے تو ہم پڑھتے ہیں, 22 گھنٹے ہمارے لیے عمل کے ہو جائے انشاءاللہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پر. چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. We have Zarina Baji with us. Zarina Baji, would you like to say anything in the beginning? آج انشاءاللہ اگر ہم پہنچ جائیں آیت نمبر 102 تک انشاءاللہ. 97 سے شروع ہو رہی ہے اور 102 جو آیت ہے نا وہ فیمیلز کے لیے, خاتون کے لیے, بیویوں کے لیے, عورتوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے سیکھنا. اگر آج نہیں پہنچے تو کوئی بات نہیں, مگر وہ آیت نمبر 102 سب کے لیے بہت ضروری ہے اس کو سیکھنا, اسپیشلی فیمیلز کے لیے. اور اس پر میں بعد میں انجم باجی پڑھائیں گے, اس کے بعد میں جب ہم وہاں پہنچیں گے تب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. لیٹ اٹ بی ان سسپینس. Yes. اوور ٹو انجم باجی. Yes, Baji. Jazakallah khair. چاہتے Yeah. ہو آیت if you جی want باجی. I can start with 97 also. Yeah, we will start with 97 only, Baji, Yes, and then once we reach there, then we will do. آپ Because 102, 103 میری بھی بہت فیوریٹ آیتیں ہیں, اور یہ ساری جو سیکریٹس ہم کو قرآن کے اندر سے ملے نا, تو یہ سیکریٹس ہمارے لیے بالکل موتیوں کی طرح ہے, ہیرے موتیوں کی طرح. الحمدللہ. یس 97 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 97, رکو نمبر 12. قل, کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے, من, جو, کان, ہے, عدوً, دشمن, عدوً, دشمن, جبریل, جبریل علیہ السلام کا, پھر, انہو, پھر بے شک وہ, نزلہ, نزل, اس نے نازل کیا, ہو, اس کو, ہو یہاں پر انڈرلائن کریں گے قرآن کے لیے. اس نے نازل کیا اس کو, یعنی جبریل علیہ السلام نے نازل کیا ہو قرآن کو, علی, اوپر, اپون, قلبک, آپ کے دل پر. قلب کہتے ہیں دل کو, ہارٹ کو. اور یہاں پر جو کاف ہے نا, یہ کاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر, قلب مبارک پر قرآن نازل کیا جبریل امین نے. کیسے نازل کیا؟ بِإِذْنِ اللہ, بِإِذْنِ اللہ, بھی ساتھ, اذن, پرمیشن, اجازت,
साथ इजाजत के, किसकी? अल्लाह की, अल्लाह के इजाजत के साथ, अल्लाह की परमिशन के साथ, अल्लाह के हुक्म से। मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाला है, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, प्रूव करने वाला है, कंफर्म करने वाला है। लिमा, उसकी जो, लिए जो, बैन यदैही, बैन यदैही, बैन यदैही हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोनों हाथों के दरमियान उसके, यानी उनके पास, उनके सामने जो है, उनके सामने, उनके पास, यानी उनके सामने क्या था? तौरात, बनी इसराइल की बातें हो रही है। तौरात और इंजील ऑलरेडी उनके सामने थी, अब कुरान नाजिल हुआ, तो कुरान उसी किताब को, इन्हीं किताबों को तस्दीक करने वाला है, यानी सेम टू सेम कंफर्म करने वाला है, बिकॉज ऑथर सेम है, अल्लाह ताला। वह हुदन, और ये कुरान क्या है? हिदायत है, ये कुरान हिदायत है, गाइडेंस है। वह बुशरा, और खुशखबरी है, गुड न्यूज, ग्लैड टाइडिंग्स, किसके लिए? लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए, ईमान वालों के लिए। फिर से देखिए इस आयत को, अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में ऑर्डर दे रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप लोगों से कह दीजिए, इन लोगों से कह दीजिए, इन लोगों से पूछिए, मन काना अदुवन, कौन है जो दुश्मन हो जिब्रील का, जिब्रील अलैहिस्सलाम का। अब ये होता था कि जो बनी इसराइल उस जमाने में मौजूद थे मदीना में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हो रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे फरमाते कि कुरान पर ईमान ले आओ, ये भी अल्लाह की किताब है, जैसे तौरात और इंजील भी अल्लाह की किताब है, तो वो पूछते थे बनी इसराइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अच्छा ये अल्लाह ही की किताब है, ये किताब आप पर कौन नाजिल करता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते कि ये फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम हम पर, मुझ पर ये कुरान नाजिल फरमाते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो बनी इसराइल जैसे ही जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम सुनते तो उनको गुस्सा आ जाता, कहते अच्छा ये वही फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम वही है जो हम इससे पहले बनी इसराइल पर अजाब भी नाजिल करते थे, तो ये वही फरिश्ता है। हम नहीं मानते, बोले फिर इस फरिश्ते को, और हम नहीं मानते उस किताब को भी जो ये फरिश्ता नाजिल करता है, इसीलिए हम कुरान पर भी ईमान नहीं लाते। ये उनकी प्रॉब्लम होती थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इनसे कह दीजिए कि ये वही फरिश्ता है जिब्रील अमीन, जो जिसने सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कुरान नाजिल नहीं किया, बल्कि और सारी किताबें जो तुम्हारे सामने तुम्हारे पास है ना, तौरात और इंजील, वो भी उसी ने नाजिल की। और ये अल्लाह के हुक्म से ये काम करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार है, और हर फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते। और जहां पर फिर ये काम इतना इम्पोर्टेंट हो कि अल्लाह की किताब का नाजिल करना, और ये किताब वैसी ही किताब है जैसी तुम्हारे सामने है, तुम्हारे हाथों में है, तौरात और इंजील, क्योंकि ऑथर सेम है, तीनों किताबें अल्लाह की किताब है, और ज़बूर भी, चारों किताबें अल्लाह की किताब है। तो अगर किताब अल्लाह की है, हुक्म अल्लाह का है, मैसेंजर प्रॉफिट भी अल्लाह ही के हैं, और नाजिल करने वाले फरिश्ते भी अल्लाह ही का हुक्म सुनते हैं, तो फिर तुम इस किताब को क्यों नहीं मानते? ये किताब वही सारी बातें बताता है जो तुम्हारी किताबों में भी मौजूद है। अल्लाह की हर किताब, चाहे वो तौरात हो जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, चाहे वो इंजील हो, वो किस पर नाजिल हुई?
ईसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन चारों किताबों में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सब तौहीद की बात करते हैं, एक अल्लाह की इबादत। ओके, और कोई कॉन्ट्रैडिक्शन नहीं है, कोई इख्तिलाफी बातें नहीं है कि उसमें है कि भाई एक अल्लाह की इबादत करो और इसमें है कि और की भी इबादत कर सकते हो। नो, शिर्क हमेशा से ही हराम रहा है। और सच बोलना, अल्लाह ताला ने हमेशा यही हिदायत दी, गुनाहों से बचना, गलत कामों से बचना, अल्लाह के हुकूक, बंदों के हुकूक, कॉमन चीजें हैं, कॉमन ग्राउंड्स है तमाम किताबों में। प्लस अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे इस किताब में है क्या, जरा देखो तो सही, इसमें हिदायत है, गाइडेंस है, रहनुमाई है। देखिए हम कितने लकी है, सुबह सुबह मंडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, दोनों दिन हमारे लिए सुबह में ही अल्लाह की तरफ से गाइडेंस का अल्लाह ने इंतजाम कर दिया है। ना आपकी ताकत है कि आप यहाँ बैठ सकते हो, ना मेरी ताकत है, ना जरीना बाजी की ताकत है, हमारे बस में कुछ नहीं। जब अल्लाह की रहमत हम सब पर, अल्लाह सुब्हानहू ताला 70 मर्तबा हमारी तरफ रहमत की निगाह करते हैं, तब हम अल्लाह के कलाम को, इस बुक को लेकर बैठ सकते हैं, वरना ये हमारे बस में नहीं है। तो फिर अल्लाह फिर हमें हिदायत देता है जब हम उसकी किताब लेकर बैठते हैं, और हिदायत गाइडेंस के साथ साथ बुशरा भी है, खुशखबरी भी देती है किताब। देखिए अगर आप कोई और किताब लेके बैठे हो ना, जरूरी नहीं हर किताब में आपको कुछ गुड न्यूज मिल जाए। कोई किताब ले लो आप, दुनिया की भी, हम शेक्सपियर पढ़ ले कि, या चेतन भगत पढ़ लो, या आप उर्दू की कोई पोएट्री पढ़ लो, या कोई और लैंग्वेज, लिटरेचर, मैथ, साइंस, जरूरी नहीं कि उसमें हमको खुशखबरी और गाइडेंस दोनों मिले साथ साथ। बट यहाँ पर तो कुरान में हिदायत ही हिदायत है। हर आयत हमको क्या करती है, इट गाइड्स अस। गाइड्स व्हाट, कि देखो ये रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, ये सही रास्ता है, ये अल्लाह की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। इसमें क्या है हमारे लिए अल्लाह की मदद शामिल होती है, इन कामों से अल्लाह राजी होता है। और ये गलत काम है, ये गलत काम से बचो तो तुम खुद बुराई से बचोगे, तकलीफ से बचोगे, मुसीबत से बचोगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। यू विल रीच ऑन द राइट डेस्टिनेशन इफ यू फॉलो दिस बुक। और हमारा डेस्टिनेशन क्या है जरा बताइए, आप लोग की भी आवाज सुने जरा हम लोग। कौन सुनाना चाहता है अपनी आवाज? समीना मुफीज, अनम्यूट समीना मुफीज एंड चांद आंटी, ओनली 2 पीपल। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हमारा सलाम। डेस्टिनेशन जो है जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस, इंशाल्लाह, वेरी गुड। जी चांद आंटी आप क्या कह रही हो? जी, के कामयाबी मिले दुनिया में भी और आखिरत में भी। वेरी गुड, वेरी गुड, इंशाल्लाह, आमीन। तो आप लोग की भी आवाज सुन ली हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो हमारा डेस्टिनेशन, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? कामयाबी। कौन सी कामयाबी? दुनिया की भी और आखिरत की भी। और ऐसा कोई काम नहीं है जो हमको इतना 200% सक्सेस देता है। ये कुरान ही हमको 200% सक्सेस की बात सुनाते हैं, और इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? यही तो बुशरा है, खुशखबरी। सुबह सुबह हमको मिल गई खुशखबरी कि 100% दुनिया मिलेगी और 100% आखिरत। ऐसा सेल तो किसी मॉल में नहीं लगता है कि जहां पर 100% सेल चलता है क्या, और 200%? नो वे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ मोमिनों के लिए खुशखबरी है जो ईमान लाता है अल्लाह पर, अल्लाह की हर आयत पर, इंशाल्लाह। तो अब हमको जिब्रील अमीन से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कौन है जो उससे दुश्मनी करे। तो बिल्कुल हमको ईमान लाना है, नॉट ओनली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम नबियों पर, बल्कि तमाम फरिश्तों पर। ओवर टू ज़ैनबा जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मेरी सलाम बहन रहमतुल्लाहि और बरकातहू। मेरी प्यारी बेटियों, आयत नंबर 97 से 103 तक पहला पारा 12वां रुकू चल रहा है इंशाल्लाह। आज हमारा पहला पारा चल रहा है, न्यू बैच है, 97 से 103 तक है, 12वां रुकू चल रहा है। अब जो आयत अभी जो की अंजुम बाजी ने कुल कह दीजिए, मन जो है वो कौन नहीं है, जो है वो कह दीजिए, जो है दुश्मन जिब्रील का, फिर बेशक जिब्रील से दुश्मनी क्यों करते हो तुम लोग। ये पूरी आयत फिर वो जैसे की थी अंजुम बाजी ने वैसी है, सिर्फ वो मन जो है वो जो है। अब जो भी जिब्रील अमीन का दुश्मन है वो अल्लाह ताला का है, वो मेरा भी दुश्मन है। ऐसा क्यों कहा, इसका शान नुज़ूल है आयत नंबर 97 का। एक आदमी था, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आदमी को जाने दो, आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने बच्चों को बड़ा किया है, तो पहले पहले होते थे सर्कस और अभी तो मॉल होते हैं, तो आप अपने बेटा या बेटी लेस देन 10 इयर्स, पहले की बात है, तो आप ले गए मॉल में और आपने उसको कोई चीज चाहिए थी, अभी तो बंदूकें बिकती है, विच इज आई एम वेरी अगेंस्ट सेलिंग ऑफ एंड बाइंग बंदूक। तुम्हारे अल्लाह करे, अल्लाह ताला करे, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि तुम्हारी घर में पोते हो, नवासे हो, बच्चे हो, बेटे हो, बेटियां हो, मगर बंदूक ना हो प्लीज। तुम लोग दिला के देते हो बंदूक के बच्चों को, क्यों दिला के देते हो खिलौनों में बंदूक। अब मैं खिलौने वालों को तो नहीं बोल सकती कि बंदूक मत बनाओ, सारी एड में भी शूटिंग ही हो रही है, मर रहा है कोई। वो एडवर्टाइज है और उसमें भी बंदूक है और नंगी औरत है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। दांत घसने के तो औरत नंगी क्यों है, मुंह के अंदर है, दांत के कहीं और है। हर एड में गंदगी है, हर एड में गंदगी है। टीवी आप खोल ही नहीं सकते अगर आपके पास कोई मेल बैठा हो तो, और ऊपर से बंदूक भी जरूरी है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज बंदूक। पहले बंदूक से ठो 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 करेंगे, फिर क्लोजअप बताएंगे। लो अंजुम, टेल मी प्लीज, यस एम आई रॉन्ग? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब बंदूक क्या करने की, क्लोजअप क्या ऐड में, बराबर। हर ऐड में बंदूक है, और हमारे घरों में भी बंदूकें हैं। जरा हाथ उठाएं जिसके घर में बंदूक ऐसे खेल नहीं है। आपकी बच्चों के, आपकी बेटियां जो शादीशुदा है, आपके बेटे जो शादीशुदा है या आपके साथ रहते हैं, उनकी औलादें हैं जो बिलो 10 है, उनके खिलौनों में बंदूक है कि नहीं, मुझे जवाब चाहिए। अंजुम, आज देम, आई डोंट माइंड वेस्टिंग टाइम। यस बाजी। पहले अंजुम तुम बताओ, तुम्हारे घर में है क्या? नहीं है बाजी, तुम्हारे घर में देखने को नहीं है मेरे घर में बंदूक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो जिनके लड़के हैं ना, लड़के, तो उनके यस बॉयज, बराबर। क्यों दिलाते हो बंदूक? अभी ये आयत इसी से कनेक्टेड है। मेरी बहन है अमीना सरवर, उनके घर में भी होंगी बंदूक, मेरे को मालूम है। अब तो उसको अनम्यूट करना नहीं आता है। अजी सिर्फ 3 हाथ ऊपर है, जरा पूछो तो जिनके पास नहीं है वो 3 हाथ है, बाकी बस। जी। अल्लाह तू रहम कर, ऐसा नहीं है बेटा, तो का आता नहीं हाथ ऊपर करने को। एक और अभी समझे वो लोग, देखो अभी हाथ ऊपर होने लगे। बंदूक नहीं दिलाने का, बच्चों को बंदूक क्यों दिलाते हो? अब मैं और वो चाइना से आती है सब बंदूकें, और क्या मालूम उसमें लाइट जलते रहती है, उसमें क्या मालूम क्या होते रहता है। शूज में भी लाइट जलती है और फिर बंदूकें भी चलती है शूज में भी। मैं तो गई नहीं कभी, मगर मैंने एक दो जगह को देखा। एनीवे, अभी देखिए हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। सॉरी, आयत नंबर 97 का शान नुज़ूल है, एक वाकया है। एक यहूदी आलिम जिसका नाम था इब्ने सूरिया। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि आप मॉल में ले जाते हो अपने बच्चे को, और वो बच्चा आपसे जिद करता है कि मम्मा मेरे को फुला चॉकलेट दिला दो, तो फिर मैं होमवर्क करूंगा घर पे जाके, तो आप उसको फुला चॉकलेट दिला देते हैं, और घर पे जाके बोलते बेटा अभी होमवर्क कर, तो बोलता नहीं करता।
یہ بچے کی صفت ہے نا, یہ تو بچہ کرتا ہے نا, نا سمجھ بچہ معصوم. مگر بنی اسرائیل اس سے بھی گئے گزرے تھے, معصوم نہیں تھے مگر بہت ہی کپٹ لوگ تھے. تو دیکھیں کیا کیا انہوں نے. تو یہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے ابن سوریہ, ایک یہودی عالم ہے جس کا نام ہے ابن سوریہ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کچھ سوالات پوچھے جو سوائے نبی کے کسی کو نہیں پتا تھے. اور نبی کا وہ آزمانا چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جواب صحیح دے دیے. تو پھر پوچھا کہ اس نے پھر پوچھ لیا کہ ارے تم نے تو سب صحیح جواب دیے, یہ تو صرف رسول کو پتا ہوتے ہیں, تو تم کو کس نے بتایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل امین نے بتایا. تو ابن سوریہ بولا پھر تو ہم نہیں مانیں گے. بولے تم نے تو پہلے بولے تھے کہ جبریل کوئی تم صحیح جواب دو گے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے, ایمان لے آئیں گے, تو ابھی تم کو کیا ہوا؟ بولے نہیں, وہ تم کو جبریل نے بتایا نا, جبریل تو ہمارا دشمن ہے, وہ تو ہمارے پہ عذاب ڈالتا ہے اور وہی لاتا ہے. جبریل امین اگر وہی لاتے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم پر کیوں لاتے ہیں, ہمارے بنی اسرائیل پہ کیوں نہیں لاتے ہیں؟ تو وہ ہمارے دشمن ہیں, اس کے لیے ہاں ابھی ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے. دیکھو کیسا پلٹ گئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دے دیجئے, جبریل امین کو اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے, اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. وہ تو قرآن لائے جو تمہاری کتاب کو سپورٹ کرتی ہے. اللہ کے کسی پیارے بندے سے دشمنی رکھنا انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. میں دونوں پڑھ لی 97 اور 98. حدیث کا مفہوم ہے حدیث قدسی ہے. اللہ سبحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا. تو ابھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ان لوگوں کو جبریل امین سے نفرت کیوں ہے. اس لیے کہ وہ عذاب بھی ڈالتے ہیں اور وہ وحی لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حالانکہ انہوں نے ابن سوریہ نے جو بھی سوالات پوچھے تھے ان سب کے جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح دے دیے. تو پھر بعد میں ماننا چاہیے, ایمان لانا چاہیے. تو بولتے کون بولا تم کو؟ تو بولے جبریل امین بولے. بولے اس کے لیے پھر ہم نہیں مانتے, ہم تو جبریل امین کی بات نہیں مانتے, وہ ہمارا دشمن ہے, تو ابھی ہم تم کو رسول نہیں مانتے. اوور. پھر بعد میں تعالیٰ نے فرمایا کہ حدیث قدسی فرمایا کہ جس نے میرے کسی دوست, ابھی دوست کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ سے محبت اور عزت کرنا ضروری ہے. دوست ہوتا کون ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ کے دوست ہوں گے نا, دوست کون ہوتا ہے؟ اور اللہ کے دوست ولی اللہ کون؟ کیا آپ اور ہم اللہ کے دوست بن سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیجیے ذرا. کوئی خاص لباس پہننا ہوگا, کوئی خاص لینگویج سیکھنی ہوگی, کوئی خاص کلر ہونا چاہیے ہمارا, کوئی خاص عرب میں رہنا چاہیے ہم کو, تب ہم اللہ کے دوست ہوں گے. بتائیے, ایک دو ہاتھ جو کھلے ہیں انہیں سے پوچھو بیٹا. کنیز بولو. انم کنیز السلام کو. علیکم. وعلیکم السلام. نہیں باجی, کوئی لباس یا کوئی پرسنالٹی جیسے آج کے جو فرینڈز ہیں ان کے جیسے بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ خالص یہی چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں اور ہر چیز ان سے ہی شیئر کریں, اور جو بھی مانگے صرف اللہ سے ہی مانگے, تو ہم اللہ کے دوست اللہ بن جائیں میرا گے. دوست ہے کہ نہیں ہے نا دوست, ہم بالکل بے شک جی ہم باجی. اللہ کا دوست بنا سکتے ہیں. یہ جو ولی اللہ سمجھ کے ڈر جاتے ہیں کہ مخدوم بابا یا اجمیر والے بابا یا whoever, they are all ولی اللہ, they are also ولی اللہ. وہ اللہ کے دوست ہیں, مگر وہ ایسے دوست ہیں اللہ کے کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے. ابھی وہ دنیا میں نہیں ہے مگر وہ تھے اللہ کے دوست. اور انہوں نے کیا کیا تھا, ان پہ جو ہم کرتے ہیں غلط حرکتیں, جا کے ناریل پھوڑتے ہیں, یہ سب یہ کرنے کے لیے نہیں کہا اللہ نے. ہم سے کہا ہے کہ ولی اللہ کی عزت کرو, ان کو مانو اور ان کے اعمال جیسے اعمال کرو. ہمیشہ دوست کو یاد کرنا, زبان سے اس کی ہی بات. ہم لوگ اگر ہماری دنیا میں ایک سہیلی ہے تو ہم کیا کرتے, وہ پکی سہیلی ہے میری, تو میں کیا کرتی, ہمیشہ اس کی بات کرتی ہوں, ہمیشہ اس کو یاد کرتی ہوں. زبان سے اس کی ہی بات کرنا, اس کے پسند کا کپڑا پہننا, یہی تو دوست ہوتا ہے. جب آپ کا نکاح ہوگا, جب بھی ہوا ہوگا, جو بھی ہیں شادی شدہ خاتون یہاں پر, جب بھی آپ کا نکاح ہوا ہو اور ان دنوں میں آپ کو پرپل کلر, یعنی کون سا کلر, پرپل, ابھی میں نے پرپل کیوں بول دی, لال کلر لے لیں گے, لال رنگ پسند تھا,
اور شادی کے بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ کو شوہر کو لال رنگ بالکل نہیں پسند ہے، ان کو تو نیوی بلو رنگ پسند ہے، پھر آپ نے کیا کیا؟ شوہر کی خوشی کی خاطر لال رنگ کو چھوڑ دیا اور نیوی بلو کو ترجیح دی. کیوں؟ تاکہ آپ کے شوہر آپ سے خوش رہیں. پھر اللہ کی ذات تو اللہ کی ذات ہے، تو اس کو دوست بنانا ہے تو پھر برائی کو چھوڑ کر نیکیوں کو اپنا لیں، تو ہم سب اللہ کے دوست بن سکتے ہیں. ہم توتلے بچہ، ہمارے 6 بچے ہیں اور اس میں سے جو توتلا بچہ ہے اس کو ہم کتنا پسند کرتے ہیں. جو بھی مہمان آتا ہے اس کو بولتے ہیں بول میرا نام یہ ہے، تو پھر سب لوگ ہنستے ہیں، تو کتنی مزہ آتی ہے. تو ویسے ہی اللہ ہمیں دوست بن سکتے ہیں اگر ہم اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کی باتوں کو ماننا ہوگا، برائیوں سے دور رہنا ہوگا، اچھائیوں کو قبول کرنا ہوگا. اوور ٹو انجم. الحمدللہ. یس باجی. 2 آیتیں ہو گئی، 97 اور 98. جی باجی میں 98 کا ورڈ ٹو ورڈ کر دیتی ہوں، آپ نے کرا دیے ہو آیت ماشاءاللہ. چلیے آیت نمبر 98 کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من کان عدوا للہ، جو کوئی ہے، جو کوئی ہو، عدوً دشمن، للہ لیے اللہ کے، یعنی جو کوئی ہو دشمن اللہ کا، وہ ملائکتی ہی اور اس کے فرشتوں کا. یہاں پر ہی اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے، ملائکتی ہی اور اللہ کے فرشتوں کا. ہی ہو ہا یہ پروناؤنس ہوتے ہیں، ہم ہم. تو یہاں پر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، کس کے فرشتے؟ اللہ کے فرشتے. وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا، یعنی اللہ کے رسولوں کا. وَجِبْرِیل اور جبرائیل علیہ السلام کا. وَمِیکال اور میکائیل علیہ السلام کا. پھر سے دیکھیے، من کان عدوا للہ، جو کوئی ہو دشمن اللہ کا، وہ ملائکتی ہی اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور جو کوئی دشمن ہو اس کے رسولوں کا، وجبریل و میکال اور جو دشمن ہو جبریل علیہ السلام کا اور جو دشمن ہو میکال علیہ السلام کا. فإن اللہ پھر بے شک اللہ، انڈیڈ اللہ، عدو للکافرین پھر اللہ دشمن ہے لیے ایسے کافروں کا، ایسے کافروں کا دشمن پھر اللہ ہے جو کوئی دشمنی رکھے اللہ سے، اللہ کے فرشتوں سے، اللہ کے رسولوں سے. پھر بے شک اللہ بھی ان لوگوں کا دشمن ہے، ایسے کافروں کا. بیکاز جو ایمان نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے فرشتوں پر، تو وہ کون ہے؟ پھر وہ کافر ہے. پھر ایسے کافروں کا دشمن اللہ ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. اب دیکھیے فرشتے کون ہوتے ہیں؟ ان آیتوں میں فرشتوں کا ذکر ہے. فرشتے کون ہوتے ہیں؟ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے جو نور سے بنے ہیں، اینڈ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں 24/7. ان کے پاس نہ پیٹ ہے، یعنی کھانا پینا، حاجت، ٹوائلٹ، نیند، کوئی کمزوری نہیں ہے ان فرشتوں کی. نہ کھانے کی ضرورت، نہ ٹوائلٹ جانے کی، نہ نیند کی، نہ ان کو کپڑے پہننا ہے، نہ شاپنگ جانا ہے، نہ ان کے اولاد ہے، نہ ان کے ماں باپ ہے. وی ڈونٹ نو، یہ غیب ہے، ہم سے غیب کی چیزیں ہیں. بٹ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو 24/7 اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں. whatever they are being ordered at once بغیر کوئی آناکانی کیے، بغیر کوئی سستی کیے، اسی وقت وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرتے ہیں. اور اس میں کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ responsibilities دی ہوئی ہے. and I had shared this picture in the last class with you. فرشتوں کی جو responsibilities ہے، تو اس میں جبرائیل علیہ السلام وہ اللہ کے تمام فرشتوں کے سردار ہے اور مقربین میں سے ہے. جبرائیل امین
फरिश्तों के सरदार है। मिकाइल अलैहिस्सलाम जो है, अच्छा, तो जिब्रील अमीन की सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रही कि हर जमाने में, हर वक्त में नबियों पर अल्लाह की वही नाजिल करना, अल्लाह की किताबें नाजिल करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिब्रील अमीन की थी। और उनको एक लक़ब दिया हुआ है जिब्रील अमीन। अमीन का मतलब होता है अमानतदार, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है ना कि अल्लाह की कलाम, अल्लाह की किताब को नाजिल करना है, तो फिर वो अमानतदार होना चाहिए वो फरिश्ता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बारे में हमको बताते हैं कि वो जिब्रील अमीन है, अमानतदार है। उसने क्या किया, अल्लाह के हर किताब को जैसे के तैसा नाजिल फरमाया अपने अल्लाह के नबियों पर। सो यहाँ पर आप देख लीजिए ड्यूटीज बता दी गई है। जिब्रील अमीन सरदार है, उनकी ड्यूटी है अल्लाह का पैगाम पहुंचाना नबियों तक। फिर दूसरे मिकाइल अलैहिस्सलाम, ये इनके ऊपर जिम्मेदारी है वेदर, क्लाइमेट, स्पेशली बारिश नाजिल करना। अल्लाह की रहमत है ना बारिश, तो वो मिकाइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी है। फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम जो है, ये मौत के फरिश्ते, अल्लाह के हुक्म से जब जिसकी मौत हो, 1 सेकंड आगे भी नहीं, 1 सेकंड पीछे भी नहीं, वो बराबर उसी वक्त उसे मौत देते हैं हर शख्स को जब उसकी मौत का वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया। इन्होंने नहीं किया है मुकर्रर, ये क्या करते हैं, सिर्फ काम करते हैं रूह निकालने का मौत के वक्त। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम है, ये इसराफील अलैहिस्सलाम अभी भी वो जो ट्रम्पेट है, सूर कहते हैं ना, सूर फूकने का काम कयामत के वक्त इनको सूर फूकना है, तो वो अभी से भी अल्लाह के हुक्म से हाथ में सूर पकड़े हुए है ट्रम्पेट, और जब अल्लाह का जैसे हुक्म होगा वो सूर फूकेंगे तो कयामत शुरू हो जाएगी। 3 बार सूर फूका जाएगा, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे कुरान में। फिर मुनकर नकीर, ये है कब्र के फरिश्ते। फिर किरामन कातिबीन, ये जो हमारे फरिश्ते हमारे पूरा दिन 24/7 हमारे अमाल नामे में लिखते रहते हैं। किरामन कातिबीन, वो सुनते हैं और लिखते हैं और देखते हैं। फिर रिदवान, ये कौन है, माशाल्लाह, ये जन्नत का दारोगा, जन्नत के फरिश्ते, इनका नाम क्या है, रिदवान। और मालिक कौन है, अल्लाहु अकबर, ये जहन्नम का फरिश्ता मालिक, ऐसा स्ट्रॉन्ग, ऐसा फरिश्ता कि उसको देखते ही पहले ही हालत खराब हो जाए। अल्लाहु अकबर, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग दारोगा। और फिर हफदा, हिफाजत वाला फरिश्ता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कुरान पाक से जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है उसी में से कुरान और हदीस के रूह से ये बताया गया है। बाकी इतने फरिश्ते हैं दुनिया और आसमान में चप्पे चप्पे पर कि अल्लाह की हर मखलूक से ज्यादा फरिश्ते, द मोस्ट ऑफ देम इज फरिश्ते, और ये अल्लाह की फरमाबरदारी में लगे हुए हैं। साइमल्टेनियसली अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहते हैं अपना काम करते वक्त भी। तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौन है जो अल्लाह से दुश्मनी रखे, अल्लाह के फरिश्तों से दुश्मनी रखे। तुम्हारी क्या, हमको क्या प्रॉब्लम है इन फरिश्तों से? हमको तो उल्टा इनसे क्या करना है, सीखना है ना इंशाल्लाह, ये कैसे अल्लाह की फरमाबरदारी करते 24/7। तो क्यों नहीं हम वो काम करते रादर देन दुश्मनी। हमको क्यों दुश्मनी? अगर समझो मेरे घर में एक लेटर लेकर आता है पोस्टमैन, अभी आजकल तो पोस्टमैन आते नहीं, कुरियर वाला आता है, व्हाटएवर, तो वो अगर मेरे लिए कोई बुरी खबर, नाउजुबिल्लाह, अगर कोई बुरी खबर लेकर आता है, अगर मैं वो लेटर खोलूं और उसमें कोई बुरी खबर हो, तो क्या मैं उस पोस्टमैन को या उस कुरियर वाले को दोष दूंगी, उस पे उसको ब्लेम करूंगी, उसको डांटूंगी कि ये क्या खबर लेके आए, तू कितना मनहूस है, तू कितना बुरा है, तू मेरे लिए इतनी बुरी खबर लेके आया? नो, वी वोंट डू दैट, बिकॉज
तो फिर कैसे हम किसी फरिश्ते के साथ दुश्मनी कर सकते? यही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं। और किसी रसूल के साथ भी हमको दुश्मनी नहीं रखनी है। ये ईमान का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि हमें अल्लाह के हर रसूल पर ईमान लाना है, हर फरिश्ते पर ईमान लाना है, फिर वो जिब्रील हो, मिकाइल हो, अभी हम डिटेल में पढ़ चुके। फिर बेशक जो कोई उनसे दुश्मनी रखे तो अल्लाह उनसे दुश्मनी रखता है। लास्ट जो है हफदा है, जो हिफाजत करने वाला फरिश्ता है, हमारी हिफाजत के लिए अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर एक वाकया पढ़ के सुनाती हूँ। इब्ने सूर्या का तो बाजी ने बता दी हमको। एक और वाकया है, सही बुखारी की रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, उस वक्त हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम, कौन थे? हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम, ये यहूदी थे और वो अपने बाग में थे। जब उनको खबर मिली, कौन थे ये? अब्दुल्लाह बिन सलाम वाज अ यहूदी, ही वाज अ ज्यू। और जब उनको खबर मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो हाजिर हुए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 बातें पूछी, 3 क्वेश्चंस किए। तो जैसे ही उनके क्वेश्चंस क्या थे ये सुन लीजिए। नहीं, बाद में बताती हूँ मैं आपको क्वेश्चंस, ये मैं सही बुखारी में से ही पढ़ रही हूँ, तो क्वेश्चंस को बाद में बताती हूँ। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझ पर वही लाते हैं, तो ये सुनते ही ये अब्दुल्लाह बिन सलाम बोले कि अरे जिब्रील तो हमारे दुश्मन है, तो फिर हम कैसे ईमान लाएंगे आप पर? तभी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत को नाजिल फरमाए। दोनों आयतें जो है 97 और 98 का नुज़ूल हुआ कि जो कोई दुश्मनी रखे अल्लाह और उसके फरिश्तों से, उसके रसूलों से, तो अल्लाह भी उनका दुश्मन है। तो फिर ये सुनकर वो अब्दुल्लाह बिन सलाम जो है ना, वो उनका दिल थोड़ा नर्म हो गया कि नहीं नहीं, मैं आपकी बात सुनता हूँ, आप मुझे इन 3 सवालों के जवाब बताइए। 3 सवाल क्या थे, सुन लीजिए। पहला सवाल था कि कयामत की पहली शर्त क्या है? कयामत की पहली शर्त क्या है? What will be the first condition of कयामत? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने जवाब बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि कयामत की पहली निशानी ये होगी कि एक आग होगी जो लोगों के पीछे लग जाएगी, यानी वो आग फैलती जाएगी, लोगों के पीछे लग जाएगी और उन्हें पूरब से पश्चिम की तरफ इकट्ठा कर देगी, यानी ईस्ट से वेस्ट तक उनको इकट्ठा कर देगी, जमा कर देगी। यानी लोग इस तरह भागेंगे और पीछे पीछे आग फैलती जाएगी और फ्रॉम ईस्ट द पीपल विल रन टुवर्ड्स द वेस्ट। ये कयामत की पहली निशानी होगी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर उसने दूसरा सवाल किया, अब्दुल्लाह बिन सलाम ने दूसरा सवाल किया था कि जन्नत का पहला खाना क्या होगा? जन्नत में जब जन्नती पहुंच जाएंगे तो पहला खाना क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों की पहली खुराक मछली की कलेजी होगी, फिश की कलेजी। हाँ, फिर तीसरा सवाल पूछा उन्होंने कि कौन सी चीज, देखिए थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी चीज बच्चे को कभी माँ की तरफ खींचती है और कभी बाप की तरफ? यानी कौन सी चीज फर्क करती है कि बच्चा लड़का हो या लड़की? माँ के पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, ये कैसे होता है? इसका जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द का पानी यानी जो स्पर्म्स होते हैं औरत के पानी पर बढ़ जाता है, यानी क्या हो जाता है? एक होता है डोमिनेंस, हमने अगर जीन्स पढ़े हैं साइंस में, तो जब मेल का जीन डोमिनेंट होता है फीमेल से तो लड़का पैदा होता है, और जब औरत का पानी मर्द के पानी पर आगे बढ़ जाता है, यानी जब फीमेल जीन्स डोमिनेंट होते हैं तो लड़की पैदा होती है। ये तीनों जवाब सुनते ही
ये सही बुखारी की रिवायत है, ये तीनों जवाब सुनते ही हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम मुसलमान हो गए और पुकार उठे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नका रसूलल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप ही अल्लाह के रसूल हो बरहक। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने पहचान लिया इन तीन जवाबों को सुनते ही। He was trying to test and then he was उनको कंफर्मेशन मिल गया और उनके दिल को इत्मीनान हो गया। He was satisfied कि यस, यही अल्लाह के रसूल है। और फिर वो कहने लगे, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी बड़े बेवकूफ लोग हैं और अगर इन यहूदियों को पता चल जाए कि मैं मेरा इस्लाम लाना, तो वो बहुत बुरा मान लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ही कोई तरकीब निकालिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदियों के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही हिकमत के साथ वाइसली एक काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा मदीना में कि अच्छा, मुझे तुम सब ये बताओ कि अब्दुल्लाह बिन सलाम कैसा शख्स है, क्या तुम जानते हो अब्दुल्लाह बिन सलाम को? तो उनके जो बड़े बुजुर्ग थे ना यहूदियों के, एल्डरली पीपल, उन्होंने कहा कि अरे अब्दुल्लाह बिन सलाम के बारे में अगर आप पूछते हो तो वो तो बहुत नेक आदमी है और वो बुजुर्गों की औलाद में से है, वो हमारा सरदार है, वो सरदारों की औलाद में से है। तो उन लोगों ने सबने अच्छी बात बोले किसके बारे में? अब्दुल्लाह बिन सलाम के। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से उन लोगों से पूछा कि अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर अब्दुल्लाह बिन सलाम मुसलमान हो जाए, इस्लाम कबूल कर ले, तो क्या तुम लोग भी इस्लाम कबूल कर लोगे? वो तुम्हारा सरदार है ना, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो क्या तुम सब इस्लाम कबूल कर लोगे? तो वो कहने लगे, आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह, हम अल्लाह की पनाह में आते हैं। वो क्यों मुसलमान होगा? वो लोग पूछ रहे वो मुसलमान होगा ही क्यों? देयर इज नो क्वेश्चन कि वो ईमान ले आए। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम वहीं पे पीछे है ना, छुपे हुए थे, वो बाहर आ गए और जोर से उन्होंने तमाम यहूदियों के सामने कलिमा पढ़ लिया, यही वाला, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये सारे जो यहूदी वहां जमा हुए थे ना, शोर मचाने लगे कि ये वो क्या कहने लगे, अचानक से वो सब पलटी मार दिए, बोलते अरे ये अब्दुल्लाह बिन सलाम तो बहुत बुरा आदमी है, बोले इसके बाप दादा भी बहुत बुरे थे और ये तो एकदम निचले दर्जे का आदमी है और ये तो खानदानी कमीना है। देखिए मैं ना ये इसमें से पढ़ रही हूँ सही बुखारी में से ही। तो आप सोचिए कि 1 मिनट में सारी बाजी पलट गई और अभी जिसकी वो तारीफ कर रहे थे अब वो उसकी बुराई करने लगे। तो अब्दुल्लाह बिन सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हुजूर, मुझे इसी चीज का डर था कि ये लोग अल्लाह की वजह से मेरे इस्लाम लाने पर ये लोग मुझसे दुश्मनी ना कर बैठे। तो देखिए ये है कि इस तरीके से होता है कि जैसे ही अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जाता है तो फिर लोग कैसे बदल जाते हैं। क्या आपके साथ, मेरे साथ ऐसा होता है? रोज होता है ना। जब तक हम भी अभी तक तो नॉर्मल थे ना, कभी भी अल्लाह और उसके रसूल की बातें नहीं करते थे किसी महफिल में, किसी पार्टी में। और अब जब हम ये करने लगे हैं किसी पार्टी में, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की किसी हदीस की बात करते हैं तो क्या होता है बताओ अनम, कैन यू टेल मी क्या होता है? अनम्यूट योरसेल्फ अनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या होता है बेटा अगर हम अब अल्लाह की बातें करते तो? जो हमारे ऊपर जो भी फरिश्ते हैं वो हमारे लिए दुआ मांगते हैं अल्लाह वेरी से। गुड। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोगों को अच्छा लगता है जब हम No, अल्लाह और उसके रसूल की बातें करते हैं? नहीं, even in आपकी my फ्रेंड्स है ना? friends, यस, I have a friend like
ऐसा बोलना नहीं चाहिए, but like her belief is not that strong, but like whenever I say na about all this, तो she is like अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये वो, and being a Muslim when you hear it, so it irritates you sometimes. तो मैं भी कभी कभी बोलती हूँ ना, तो कुछ कुछ लोग ऐसे ही रिएक्ट करते, बोलते कि तुम कभी कभी ये भी बोलेगे कि तुम पहले अपना देखो फिर Yes, तो correct. yeah, it's like that. तो नहीं अच्छा लगता है ना किसी को, नहीं अच्छा लगता है, वो क्या कहते हैं कि अरे बाबा क्या हो गया है तुमको, पागल हो गए तुम, अभी अपन कौन सी पार्टी में आके बैठे, यहाँ पे दावत हो रही है, अभी यहाँ पे भी क्यों तुम कुरान की बात करते हो, एक ही बातें लेके बैठते हो, isn't it? अल्लाहु अकबर. Similarly it so happened with them. लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया ठीक है तुमको दुश्मनी करनी है, करोगे तो फिर सोच लो, फिर अल्लाह भी तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा. कैन वी अफोर्ड अल्लाह की दुश्मनी, कि अल्लाह हमसे यानी नाराज होना तो एक तरफ, अल्लाह दुश्मन बन जाए उसका. कैन वी अफोर्ड दिस? हम सोच भी नहीं सकते है ना. तो दुश्मनी बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है. लेकिन कभी भी हम किसी फरिश्ते, किसी रसूल के बारे में कुछ गलत बात भी ना करें. अगर हमारा नॉलेज कम है तो हम अपने नॉलेज को बढ़ाएं, हम सर्च करें, उसके बारे में रिसर्च करें, लेकिन हम अल्लाह और उसके रसूल और उसके फरिश्तों के बारे में कभी भी कोई गलत बात ना करें. इंशाल्लाह दुश्मनी बहुत दूर की बात, बल्कि दोस्ती करें, जैसे बाजी ने बताया कि क्या हमारी दोस्ती हमारे फरिश्तों के साथ. अब फरिश्तों से कैसे दोस्ती करेंगे भाई? अभी बाजी वली अल्लाह की बात कर रहे थे, तो वो जो वली अल्लाह जो हम देखते हैं मज़ारे वगैरह लोगों ने बना रखी है, तो वो बहुत नेक लोग थे माशाल्लाह, बट वो अब कहाँ है? दे आर नॉट अलाइव. तो उनके मज़ार पे जाके उनसे दोस्ती नहीं होने वाली है. उनके जैसे अमल करेंगे इंशाल्लाह, तो हो सकता है कि हम उनके जैसे बने. अब फरिश्ते जो है अल्लाह के इतने फर्मा बरदार, तो हम उनके दोस्त बनना चाहते हैं तो उनको कॉपी करना पड़ेगा. इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको अपना फर्मा बरदार बनाए और तौफीक दे हमको. इंशाल्लाह आयत 99 पर चलते हैं. बाजी डू यू वांट टू से? पहला सवाल क्या था? बाजी एक मिनट में बताती हूँ. क़यामत की पहली निशानी, तो उसका जवाब क्या है? क़यामत की पहली निशानी ये होगी कि एक आग निकलेगी. एक मिनट मैं यहाँ से पढ़ के फिर से बताती हूँ. जी, एक आग होगी जो लोगों के पीछे लगेगी और उन्हें पूरब से पश्चिम की तरफ जमा कर देगी. राइट बाजी? आप हाँ, इसके बारे में लोगों से पूछिए ना. जी, अभी ये आपने 3 सवाल बताए, 3 जवाब बताए. किसने पूछा, किससे पूछा, क्या पूछा, सवाल क्या था, जवाब क्या था, इन्होंने सुन लिया, मगर आपको उसका फीडबैक लेना पड़ेगा. ओके बाजी, राइट. चलिए बताइए कौन सी हदीस हो सकता है आपने पहली बार सुनी हो ना, तो चाहे पहली बार सुनी हो या ना सुनी हो. मच्छी की कलेजी है ना, वो मैं रोज क्लास में बोलती थी. किसको हाँ. चाहिए जो जिसने जरा भी वो नहीं किया होगा ना गुनाह, तो वो जब पुल सिरात पर जाएगा ना, तो हाँ. पहले नबी जाएंगे, उसके बाद वली अल्लाह जाएंगे, उसके बाद तहज्जुद कर जाएंगे, तो उसके बाद में हमारे जैसे लोग जाएंगे, और खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कि गिरे और ना गिरे, तो फिर कब पहुंच जाएंगे? फजर की नमाज के टाइम पे हम पहुंच जाएंगे जन्नतुल फिरदौस में, और मच्छी की कलेजी खाएंगे. ये मैं रोज क्लास में बोलती थी. इंशाल्लाह आमीन. तो वो नाश्ता होगा ना उसका, नाश्ता. हाँ, वो मच्छी की कलेजी का है ना, मेरे को कहीं से भी प्रूफ नहीं मिल रहा था, तो आज मेरे को मिल गया मच्छी की कलेजी का. जी. तो नाश्ते में मच्छी की कलेजी मिलेगी, और फिर अगर जरा ज्यादा गुना हुए हैं तो फिर वो दोपहर के खाने में पहुंचेंगे. मगर हमको ऐसा लगता है कि अभी हमारा तो नाश्ता 9 बजे हुआ और दोपहर का खाना 1 बजे होएगा, तो कुछ ही घंटे हैं. मगर ऐसा नहीं है, वो वाला दिन 50,000 साल का होगा. तो अगर आपको नाश्ता मिल गया मच्छी की कलेजी का जन्नतुल फिरदौस में, तो हम सब खुशकिस्मत होंगे. और अगर नाश्ता छूट गया और दोपहर का खाना मिला, तो 25,000 साल आग में रहना पड़ेगा.
This hadith verifying that. Yes, तो Haji. 25,000 साल हमको आग में अल्लाह ना करे गिराए, अल्लाह हमको भी वली अल्लाह की तरह पुल सिराज से सीधा जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दे और फिर हम वहाँ नाश्ता करें, उसमें मच्छी की कलेजी मिलेगी. This is the first time I got the proof of मच्छी की कलेजी. मैं रोज बोल, मगर मेरे पास इसका कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं था, मगर ये बुखारी की हदीस है, तो फिर आई गॉट द सबूत. अल्हम्दुलिल्लाह. तो इन लोगों को बाद में चाहिए तो फीडबैक में पूछना, मगर ये बहुत जरूरी है पूछना. दूसरा सवाल क्या था? क्विकली बाजी, अभी हाँ, क्विकली दूसरा सवाल था जन्नत का पहला खाना, तो वो मच्छी की कलेजी. और तीसरा सवाल जो है ना, वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए. बेटा या बेटी होगी ये कैसे पता चलेगा? तो अभी जो अंजुम बाजी ने बताया उसमें ये मैं जरा खोल के बोलना चाहूंगी कि ये जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड यानी लिक्विड, मेल का भी फ्लूइड होता है और फीमेल का भी. हम आसान जबान में बोल रहे हैं, तो मेल का और फीमेल का फ्लूइड जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. तो उस फर्टिलाइजेशन में अगर मेल के फ्लूइड में जो स्पर्म होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है तो बेटा होता है, और अगर वो कम ताकतवर होता है तो बेटी होती है. एम आई राइट अंजुम? यस बाजी, यस. हाँ, तो इट्स ओवर. अभी सेकंड टाइम भी बता दिया. तो ये सुनने के बाद में अब्दुल्ला बिन सलाम ने क्या किया? कलमा पढ़ लिया, इस्लाम ले आए. ओवर टू अंजुम. यस बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए आप लोग बताइए जल्दी से, ये हदीस समझ में आई आपको? जल्दी से 2 हाथ ऊपर कीजिए और मुझे बता दीजिए. कनीज, यस कनीज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी बाजी बहुत अच्छे से समझ आई, और वे दलील और जो बाजी कह रहे थे मच्छी की कलेजी, ये हम कई साल से सुनते थे लेकिन नहीं पता था दलील. अल्हम्दुलिल्लाह आज पता चल गई. सो इट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा ये सुन के विद दलील. यस अल्हम्दुलिल्लाह.